السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ناگپور کے سرزمین پر اسد بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا۔ انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں اور زیارت ہم آج حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کریں گے۔ زیارت انشاءاللہ تعالی میں جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کو کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد، حضرت بابا تاج الدین کے آباء و اجداد مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اور آپ کے خاندان کے اکثر بزرگ جو تھے وہ فوج میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی اور سپاہ گیری میں ماہر تھے۔ آپ بھی اپنے نانا کی تربیت میں رہ کر اسی طرف کا رخ کیا اور ریجمنٹ نمبر 13 میں آپ کی شمولیت ہوئی۔ بچپن کے حالات کچھ اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جب آپ کو مکتب میں داخل کیا گیا اور آپ اپنے استاد سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اسی وقت تو حضرت عبداللہ شاہ قادری جو ایک مجذوب بزرگ تھے کامٹی کے، مکتب میں اسی وقت تو تشریف لائے جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو آپ نے آنے کے بعد آپ کے استاد سے کہا کہ اسے کیا پڑھاتے ہو؟ یہ تو پہلے ہی سے پڑھا لکھا ہے، اسے کیا سکھاتے ہو؟ یہ پہلے ہی سے سیکھا سکھایا ہے۔ پھر کچھ کھلی کا ٹکڑا یا کوئی میٹھی چیز آپ نے چبا کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دی، تو اس کے بعد سے دنیا سے آپ کا دل اچاٹ ہو گیا اور اکثر پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ اور اسی وقت تو حضرت عبداللہ شاہ قادری نے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وصیت فرمائی، یہ نصیحت فرمائی کہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو اور زیادہ اللہ کی یاد کرو۔ اس طرح کی کچھ نصیحتیں حضرت عبداللہ شاہ قادری نے حضرت بابا تاج الدین سے اس وقت فرمائی، اور پھر وہاں سے آپ تشریف، کہا جاتا ہے کہ میں تھے تو اس وقت کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ کسی نے آپ کی شکایت کی کہ آپ صحیح طریقے سے ڈیوٹی انجام نہیں دیتے، اور جا کر جب آپ کے اعلیٰ افسروں سے شکایت کی گئی تو آپ کے اعلیٰ افسر نے، ادھیکاری نے جب آپ کا جائزہ لیا تو رات میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی آپ اس جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور پاس کی ایک عبادت گاہ میں جب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں آپ عبادت بھی کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اس نے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی اور تو نہیں، یہاں بھی جب جاتا ہے تو وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پاتا ہے۔ ڈیوٹی کی جگہ پر جب جاتا ہے تو وہاں بھی آپ ہی کو پاتا ہے۔ وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب صبح نمودار ہوئی تو اس نے کہا کہ تم ایک وقت میں دو کام کیسے کر سکتے ہو؟ تو چونکہ آپ کو جلال آ گیا، اور وردی اور وہ ساری چیزیں جو اس وقت کے لوگوں کو ملا کرتی تھی ڈیوٹی کرتے وقت، ساری چیزیں آپ نے لا کر ٹیبل پر رکھ دی اور کہا کہ لو جی اب ہم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ ساری چیزیں لا کے رکھ دی، گویا کہ آپ نے ساری چیزوں کو واپس کر کے ریزائن کر دیا کہ اب میں اس نوکری سے دستبردار ہوں، اب یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے حالات آپ کے بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی دوران یعنی کہ جس دوران آپ فوج میں تھے تو آپ کو، آپ کی نانی کو یہ شکایت دی گئی کہ رات میں یہ کافی دیر تک، رات دیر گئے تک یہ غائب رہتے ہیں، یہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ تو اندیشہ ہوا، آپ کی نانی کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں لڑکا، ہمارا بیٹا کوئی غلط صحبت یا سنگت کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ آ کر جب آپ کی نانی نے دیکھا آپ کو تو آپ کو عبادت و ریاضت میں مشغول پایا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، دل کو قرار آ گیا، مطمئن ہو کر پھر وہاں سے آپ واپس دوسری طرف دیکھ۔ بہت سارا کام یہاں پر ابھی جاری ہے، اور پیچھے کی طرف بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو عمارتوں کا کنسٹرکشن چل ہی رہا ہے۔ ادھر دیکھیں صفائی، اس طرف بہت جگہ ہے، یہاں پر بہت
यानी कितनी भी पब्लिक हो, कितना भी रश हो, लोग अल्हम्दुलिल्लाह समा जाएंगे। जी छतरी लगी हुई है, हाँ हाँ, वो बाबा का कुआं अच्छा नल से अटैच है। देखिए इस पर छतरी ऊपर लगी हुई है और ये बताया जा रहा है कि ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का कुआं है और अभी शायद इसमें नल वगैरह भी अटैच किया गया है। हाँ माशाल्लाह काफी बड़ा है और ये ऊपर छतरी। दोस्तों आपकी शोहरत बढ़ गई नागपुर में और बहुत लोग दूर दराज से आपके पास दुआएं करवाने के लिए अपनी हाजत लेकर आने लगे, तो फिर उसमें ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना भी चाहा, तो आपने फिर अपने मखसूस लबो लहजे में कहा कि अब हम पागल कोठी जाएंगे। इस तरह से इसका मफहूम बनता है कि अब हम पागल खाना जाएंगे। तो फिर कुछ ऐसे असबाब बने कि आपको वाकई पागल खाने में ले जाकर भर्ती करवा दिया गया। हुआ ये कि जो पागल खाने का इंचार्ज था वो भी आपका कहीं ना कहीं से कायल था, अकीदतमंद था और बहुत से लोगों से उसने आपके हवाले से करामतें और आपकी अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत के वाक़यात को सुन रखा था। गाहे बगाए वक्तन फ़वक्तन वो अपनी बीवी से हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा करता। एक दिन उस पागल खाने के इंचार्ज की बीवी ने कहा कि देखो हमें मुसलसल 5 बेटियां हैं और हम हर दिन बेटे का सपना देखते हैं, हम ये चाहते हैं और हमारे दिल में तमन्ना है कि कहीं हमें बेटा हो जाए। 5 बेटियां हैं, अगर कुछ बेटे भी हो जाते तो ये बड़ी करम की बात होती। तो क्यों ना ऐसा करें कि आपकी निगरानी में जो पागल खाना चलता है उसमें इतने बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं जो जिसके लिए दुआ कर देते हैं, उनकी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता, कबूल किया जाता है। तो आप भी ऐसा करें कि जाकर उनसे दुआओं की दरखास्त करें और ये कहें कि हमें 5 बेटियां हैं, आप दुआ कर दें कि हमें तो चूंकि वो था मराठा ब्राह्मण, उसने कहा कि ये मैं एक मुस्लिम धर्म गुरु से ये बात कैसे कहूँ, लेकिन बीवी ने फिर बड़ी मिन्नत समाजत की उसकी, बड़ी उसने उसको दरखास्त की और बड़ी मिन्नत की कि नहीं आप जाकर कहें, हो सकता है कि उनकी दुआ कबूल हो जाए और हमें ईश्वर औलाद अता कर दे, बेटा दे दे। अब जाकर जब दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उस इंचार्ज ने सोचा कि मैं अपनी बीवी को खुद लेकर चलता हूँ और तुम खुद ही अपने तौर से अपने हिसाब से बाबा की बारगाह में दरखास्त करना, उनसे दुआओं की इल्तिजा करना, हो सकता है कि तुम्हारी अर्जी जल्दी कबूल हो जाए और बाबा हमारे लिए दुआ कर दे और हमें बेटा हो जाए। दूसरा दिन आया और फिर उस इंचार्ज ने अपनी बेटी को हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब लेकर जाता है और फिर उस बीवी ने कहा कि हज़रत 5 बेटियां हैं हमें और हम चाहते हैं कि आप दुआ कर दें और आपकी दुआ से हमें बेटा हो जाए। तो हज़रत ने जा तुझे बेटा होगा और ऐसा ही हुआ। आने वाले साल उसकी गोद भरी और अपना बेटा लेकर वो हज़रत बाबा ताजुद्दीन के कदमों में लाकर रख दिया। आपने खुश होकर शफकत फरमाई, दुआएं दी और फरमाया कि जा इसे ले जा, अभी तो 4 को और भी लाना है। चूँकि आपने 5 बेटों की बशारत दी थी कि 5 बेटियां हैं तो अल्लाह तुझे 5 बेटे भी देगा। एक को लेकर आई, शफकत फरमाई, दुआ फरमाई और कहा कि जा इसे ले जा, अभी तो यके बाद दीगर तुझे 4 औलाद और लाना है, 4 औलाद तुझे अल्लाह 4 बेटे तुझे और देगा। इस तरह से आपकी दुआ कबूल हुई और मंगतों की मुराद पूरी हुई और उनकी खाली झोली को अल्लाह ताला ने अपने मकबूल बंदे, अपने वली कामिल हज़रत बाबा ताजुद्दीन की दुआओं से उसकी मुराद को पूरी फरमा दिया। ये होता है अल्लाह।
दोस्तों ये है मस्जिद हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के बिल्कुल सामने। देखिए इस तरफ आस्ताना है और सामने की जानिब इस तरफ ये मस्जिद है। मस्जिद भी माशाअल्लाह बड़ी कुशादा है और बड़ी शानदार है, बड़ी शानदार है। हम लोग मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। ये देखिए पहली मर्तबा असर से पहले जब मैं मस्जिद में आया तो यहाँ के ठंडक और यहाँ का सुकून और माहौल देखकर माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया। यहाँ पर असर की नमाज भी पढ़ी माशाअल्लाह, बहुत पुरसुकून जगह है। रकबा देखिए कितना है, कितनी बड़ी मस्जिद है। ये चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते। अभी ये जो सामने पर्दा है, पर्दे के बाद भी ये देखिए यहाँ से तो सफ़े लगना शुरू हुई है, यहाँ से सफ़े लगी हुई है। और ये अंदर देखिए जी माशाअल्लाह। ये डोला मुबारक हजरत सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, और ये डोला मुबारक यहाँ 17 अगस्त 1925 26 मुहर्रम 1334 हिजरी से मौजूद है। और इस डोले मुबारक में सरकार की नमाज जनाजा पढ़ाई गई थी। ये डोला ये देखिए ये वही है जिसमें बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को रखा गया और इसी में रखकर आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई है। मस्जिद के अंदर निशानी के तौर पर आज भी इसे रखा गया है। यहाँ पर देख ली कितनी बड़ी मस्जिद है यहाँ इस तरह। अमरावती से स्कूल के बच्चों की ट्रिप भी आई हुई है माशाअल्लाह। अब जो हाई कोर्ट बताया जाता है वो कहाँ पर है? यहीं कहीं ये वाकी शरीफ में। वाकी शरीफ। हाँ। ये कितना पड़ता है? यहाँ गेट से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। हाँ। तो वहाँ का क्या वाकई क्या मामला था वहाँ की? बाबा बैठ के इबादत करते थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ ये वाकी है और 3 किलोमीटर आगे इबादत खाना है। 24 घंटा वहाँ खाना मिलता है। लंगर आम। हाँ 24 घंटा। और 3 किलोमीटर पहले वाकी है और थोड़ा सा और आगे आइए दवा खाना है। बाबा का हाई कोर्ट है। लिख की पर्चा छोड़िए। हाँ 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 हाँ। अब कैसी भी नौकरी चाहिए, लड़की लड़का की शादी है, सब मुराद आपकी साल के अंदर पूरी हो जाएगी, मगर दोबारा आप जाइए इंशाअल्लाह। हाँ लिख कर वहाँ पर अर्जी डालनी होती है ना? हाँ वाकई में चादर चूम के नीचे डाल दीजिए। आप कोर्ट में लिख के और पंच ऐसे करके इतना कागज रहता है, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 200, किसी में 500। इतने सारे लोग अर्जी डालते हैं वहाँ पर। अर्जी डालते हैं और कागज ऐसे खड़ा कर देते हैं, इतना कागज रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा की कोर्ट से फैसला आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कहाँ से आप आए? मालेगांव, मालिक डिस्ट्रिक्ट नासिक। अब जो आप खबर बता रहे थे किसकी? बहादुर शाह जफ़र। हाँ बाबा ताजुद्दीन बाबा का घोड़ा था। तो दोस्तों मैं भी पहली मर्तबा इन्होंने मुझसे सवाल किया कि कौन है बहादुर शाह जफ़र, तो मैंने कहा कि आखिरी मुग़ल बादशाह। और फिर अगर ये उसको एक्सेप्ट कर लेते तो मैं आगे कहता कि उनकी कब्र यहाँ कैसे हो सकती है, वो तो रंगून में। लेकिन इन्होंने कहा कि वो बादशाह नहीं है बल्कि
बाबा ताजुद्दीन का घोड़ा है, उसकी कब्र है। तो हम लोग बाबा के साथ चल के देखते हैं कि कहाँ पर है। तो दोस्तों अब हम हाजिर हैं बहादुर शाह ज़फ़र की मज़ार पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बहादुर शाह ज़फ़र के मज़ार पर। इसका वाक़या क्या है, पस मंज़र क्या है, ये बाबा आपको बताएंगे। बाबा बहादुर शाह ज़फ़र का मज़ार तो रंगून में, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, आप कह रहे हैं यहाँ? ये ताजुद्दीन बाबा का घोड़ा है। अच्छा, घोड़ा। हाँ, ये बाबा इस पे सवारी करते थे। अच्छा, तो इसका नाम लोगों ने रखा है कि बाबा साहब बाबा ने रखा था। और वो जो अभी आप बता रहे थे कि राजा की सवारी आ रही थी, और हाँ, तो राजा साहब ऐसे जा रहे थे और ऐसे ताजुद्दीन बाबा ऐसे जा रहे थे तो बग्घी रुक गई, घोड़ा बढ़वा नहीं भैया। हाँ, बाबा के आगे बढ़वा नहीं भैया। फिर छोटा छोटा उसने मारा। हाँ। नहीं बढ़ा घोड़ा। ओहो। तो चलाने वाले हाथ जोड़ा। हाँ नमस्कारी किया हाथ जोड़ के। हाँ हाँ। तो फिर बाबा जब आगे बढ़े तो घोड़ा बढ़ा, तो पूरे शहर के घोड़े वाले यहाँ इकट्ठा हो गए रहे। हाँ, तो दूल्हा यहाँ घोड़े पे नाचता है। अच्छा, घोड़ा गिरता नहीं है। अच्छा। हाँ, दूल्हा को घोड़े पे नचाते हैं रस्सी पकड़ के, दूल्हा गिरता नहीं है। अब भी होता है ऐसा? हाँ, अच्छा। बारात जाए आप देखिए, घोड़ा नचाते हैं लगाम पकड़ के। यहाँ ला वाक़या और मिलता है कि राजा गौरव जी की बहू जब मुराद से थी और ऐन वक्त विलादत कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे की विलादत नहीं हो रही है। बहुत सारे तबीब, हुक्मा, डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन किसी की कोशिश, किसी की दवा काम ना आ सकी, और राजा इस बात पर रजामंद नहीं थे कि ऑपरेशन किया जाए। और उसी परेशानी के आलम में जो राजा का ड्राइवर था, उसने राजा से कहा कि मैं एक अल्लाह के वली को जानता हूँ, जिनकी ज़ुबान से जो निकलता है वो पूरा होता है, वो जिसके लिए दुआ करते हैं उनकी दुआ मकबूल हो जाया करती है। तो राजा ने कहा कि फ़ौरन मुझे उनके पास लेकर चलो, चूँकि उस वक्त तो आप पागल खाने में थे। और जैसे ही उनको लेकर जाया गया राजा को पागल खाने में, वहाँ के तमाम तर मुलाजमत करने वाले और तमाम तर वहाँ के मिलने की कोशिश करते, इस्तकबाल करना चाहते राजा का, लेकिन आपने किसी की तरफ कोई तवज्जो न की और फौरन आप अंदर गए उस जगह पर जिस जगह पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजूद थे। वहाँ पर जाने के बाद अपने सर को कदमों में रख दिया, अपने आप को उनके कदमों में गिरा लिया। तो आपने अपने मखसूस लबो लहजे में वही फरमाया कि उठो जी, घर जाओ, बेटा हुआ है, खुशी मनाओ, जाओ। इस तरह से कहा। राजा उल्टे पैर फौरन पलटा। जल्दी से जब घर पहुंचते तो क्या देखा कि वाकई विलादत हो चुकी थी, और जो औलाद दुनिया में आई, जिससे बच्चे की विलादत हुई, वो बेटी नहीं बल्कि बेटा था, इसलिए कि आपने कहा तो वो बेटा ही था। तो राजा को, और उसके बाद फिर उसने इलाके के अंदर जो है तो बहुत आलीशान बग्गी पर सवारी पर आपको बिठाकर मोहल्ले का, इलाके का गश्त करवाया, बड़ी शान व शौकत से और बड़ी अकीदत और मोहब्बत का उसने इजहार किया हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह। या आपकी सामने अगर आपको कुछ भी लगता है, फूल वगैरह, चादर वगैरह, तो ये इस तरफ सारी दुकानें मौजूद है। ये यहाँ से इंटर होते हैं और इस तरफ से देख सकते हैं आपके कुछ दुकानें यहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरफ दुकानें लगी हुई है। क्या नाम है भाई आपका? रिजवान ताजी। रिजवान ताजी। ये शॉप नंबर कितना है? शॉप नंबर 1 है। शॉप नंबर 1 है। चादर, शिरनी, फूल, सारी चीज़ें अपने पास होती अतर हैं। वगैरह भी है। इतर वगैरह भी माशाल्लाह। बड़े से बड़ी चादर, छोटी से छोटी चादर, जैसा ये हमारे जी की भाई है। क्या नाम है भाई आपका? सैयद शाहिद अली। सैयद शाहिद अली, माशाल्लाह सैयद साहब। ये शॉप नंबर 4 अपनी है ना? ये भी सैयद अली ताज फ्लावर शॉप, माशाल्लाह। आप जब भी आए तो इन शॉप से, ये यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं, यहाँ से चादर है, शिरनी है, फूल वगैरह इतर है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। शॉप नंबर 11 मालेगांव, शहजाद अंजुम।
सलात सलाम शुरू है और फूल लेकर अंदर जाया जाता है। हाज़री हो गई है, अब मैं भी हाज़री देता हूँ उन लोगों के साथ में। देखिए सब लोग खड़े हैं। सब लोग खड़े सलात सलाम में। दुआ जैसे ही मुकम्मल होती है नक्कारा बजता है और सब लोग एक साथ दरबार में हाज़री देते हैं। यहाँ से सेक्शन शुरू हो जाते हैं, इधर से हम अंदर की जानिब हाज़िर रहती है। ये लोग कतार लगा कर भैया लेगी तो तुम्हारे को इशारा किया वहाँ से मस्जिद की 35 करना बैठा, तुम जब वसूल करके उठे गए। नहीं कौन से स्कूल से आए आप?
कौन से स्कूल से आए? हाजी शगुन उर्दू हाई स्कूल। हाजी शगुन उर्दू हाई स्कूल। कहाँ से? ये रात का इस तरफ ताना आपको बिल्कुल इस वक्त को झगमगाता चमकता दमकता हुआ दिखाई दे रहा है इंशाल्लाह। कब्रिस्तान से निकलने के बाद अभी ऑटो मिला और अब यहाँ से ऑटो से जा रहा हूँ मैं कामटी जाकर इंशाअल्लाह कब्रिस्तान वहाँ पर मशहूर और मारूफ हमारे ही जमात अहले सुन्नत के हज़रत मौलाना एजाज़ कामटी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर उनकी कब्र पर हाजिर देना है और इंशाअल्लाह वहाँ की ज़ियारत में आप लोगों को करवा दूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर हज़रत मौलाना एजाज़ कामटवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है। कामटे का ये मशहूर क़दीम कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान। और माशाल्लाह यहाँ पर एक चाचा हमें मिले और उन्हीं की मदद से, उन्हीं के ज़रिए से हम यहाँ पर अभी पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात होनी है और उन्हीं के ज़रिए से हमें मौलाना एजाज़ कामटवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ बातों को जानना है, पता करना है और इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें वो लोग जो हज़रत के हवाले से जानते हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमें बताएंगे। ये है हज़रत मौलाना सईद एजाज़ कामटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ, आपकी दरगाह है। और अहले सुन्नत में से अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई इन्हें जानता है। मशहूर ज़माना सलाम हो या बहुत सारे नातिया कलाम हो, मनकबत हो, हम अक्सर व बेशतर अपनी महफ़िलों में पढ़ा करते हैं। एजाज़ ही की एक बात क्या है, एजाज़ ही की एक बात क्या है, दुनिया करे तुमका सलाम ऐ प्यारे नबी। करे तुमका सलाम ऐ प्यारे नबी, चंदा करे तुमका सलाम ऐ प्यारे नबी, तारे गगन ले तुमरा नाम ऐ प्यारे नबी। ये सलाम जो अक्सर हमारी मसाजिद में, हमारी महफ़िलों में पढ़ा जाता है, ये इन्हीं का हज़रत मौलाना सईद एजाज़ कामटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ ये मशहूर ज़माना कलाम है। और हुज़ूर पीर पीरा मीर मीरा शाह जिला हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में जो आपने मनकबत लिखी है, मोरे सपना माँ दर्शन दिखाए गयो रे मोरे गौसुल वरा, मोरा सोते में भाग जगाए गयो रे मोरे गौसुल वरा, चांदनी मुझको एजाज़ फीकी लगे ऐसे अच्छे हैं वो, हर किरण मुझको सूरज की धुंधनी लगे ऐसे अच्छे हैं वो, कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे मोरे गौसुल वरा। ये मनकबत भी हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में आप ही ने तहरीर फरमाई। मुझे अच्छी से याद है कि सन 1996 में 22 दिसंबर से 1 या 2 रोज़ पहले, यानी कि यूँ समझ ले
20 दिसंबर या 21 दिसंबर को हमारे शहर मालेगांव इस्लाम पूरा वक़ार चौक में एक अज़ीमुश्शान जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक अज़ीमुश्शान इजलास मुनक्किद होना था अल-जामिअतुज़ ज़हरा इज़हारुल उलूम के तवस्सुत से। और उसी तकरीर में आपने दौरान तकरीर फरमाया था कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर होगी। देखिए अल्लाह वालों की ज़ुबान क्या होती है। आपने दौरान ख़िताब फरमाया था कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर होगी, आखिरी हमारा बयान, आखिरी ख़िताब होगा। और दौरान तकरीर आपने कुछ अशार पढ़े थे कि कभी इन कदर, कभी उस डगर, कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। फिर आपने उसी तकरीर में आगे फरमाया कि कल हम मलाड बॉम्बे में बोलेंगे, और फिर 1-2 मकामात के नाम लिए। और फिर हुआ भी यही कि 22 दिसंबर को जब आप मुंबई, और उसके बाद जब आप इजलास की गरज से मलाड मुंबई तशरीफ़ ले गए, वहीं आपका विसाल हुआ था। 21 दिसंबर को गालिबन विसाल हुआ था, और 22 या 23 दिसंबर को आपका जनाज़ा और आपका मदफ़न शरीफ यहाँ कामटी लाया गया, और फिर यहीं आपको जो है तो सुपुर्द खाक किया गया। आप मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर सकते हैं यहीं पर, यही आपका आखिरी मकाम है, यही आपकी आखिरी आराम गाह है। मौलाना सईद एजाज़ कामटवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने बहुत इल्म व फ़ज़ल से नवाजा था। उनकी तकरीरों को, उनके बयानात को लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुना करते थे। जो उनकी रवानी थी, जो उनका लहजा था ख़िताब करने का या नाज शरीफ पढ़ने का, जो आपकी शायरी थी, वो सुनने के बाद कोई भी शख्स जो है तो बग़ैर दाद दिए नहीं रहता था। आपने मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग कूचों में, अलग अलग इलाक़ों में तबलीगी दौरे फरमाए, और हिंदुस्तान के बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी जाकर आपने अलग अलग ममालिक में अपने मुल्क का, अपने शहर का नाम रोशन किया है। आज भी बहुत सारे बयानात उनके कैसेटों में और यूट्यूब वगैरह पर मौजूद है। आप सर्च करके उनके कलाम को, उनकी नातों को, उनके ख़िताबात को सुन सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसा प्यारा अंदाज़ आपको अता फ़रमाया था। इस कब्रस्तान की भी आप ज़ियारत फरमाएं। और कहा जा रहा है कि इस कब्रस्तान में भी बहुत सारे औलिया किराम के मज़ारात मौजूद है, बहुत पुरानी कब्रें यहाँ पर मौजूद है। पूरे कब्रस्तान की ज़ियारत तो नहीं हो सकेगी, वक्त तो कम है, और मुझे जल्दी से यहाँ से ऑटो पकड़कर स्टेशन तक जाना होगा, और स्टेशन से फिर ऑटो से ही नागपुर जाना होगा, मोमिनपुरा। वहाँ से फिर इंशाअल्लाह ताला ताजबाग हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़री होगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला वहाँ की ज़ियारत आपके सामने पेश की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है नागपुर का मरकज़ी मजलिस मुस्लिम कब्रस्तान, मुस्लिम मोमिन कब्रस्तान के नाम से ये मशहूर है। और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया, यहाँ की एक ख़ास बात तो इस
مسلم قبرستان کی یہ ہے کہ قبرستان الگ الگ نہیں ہے، یعنی کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے، تمام مسلک کے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ اہل تشیع شیعہ حضرات کی قبریں بھی ایک حصے میں ادھر ہی وہ بھی اپنے مرحومین کو دفناتے ہیں، ان کی بھی تدفین نہیں پر ہوتی ہے۔ کہ دیکھیے یہ گیٹ ہے، یہاں سے قبرستان کی حد اس طرف سے شروع ہوتی ہے، یہ اس طرف کچھ قبریں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی ہم حاضری دیں گے، اور خاص طور پر آپ کی مزار کی زیارت ہم کروائیں گے۔ آپ ابھی اس طرف قبرستان کا کچھ حصہ دیکھیں، یہ اس طرف یہاں پر کئی گاڑیاں دیکھنے کو ملی، یہ جو جس پر مردوں کو لایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر زیادہ، جیسا کہ ہمارا شہر مالیگاؤں میں جو مزاج ہے مردوں کو کاندھا دینے کا، دور تک کاندھا دے کر لے کر چلنے کا، یہاں پر ان گاڑیوں کی تعداد اور اس اہتمام کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر مردوں کو زیادہ کاندھا دینے کا مزاج شاید نہیں ہے۔ گاڑیوں کا جو اہتمام اور جس طرح سے گاڑیاں، یہاں پر کئی گاڑیاں ابھی تک نظر آئی، کہ ایک سامنے بھی لگی ہوئی ہے، یہ اس طرف بھی ایک ہے، باہر بھی ایک نظر آئی، اور یہاں پر اس گاڑی کی یہ بھائی سروسنگ کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے مرحومین کو گاڑی میں رکھ کر ان کا جنازہ قبرستان۔ ماشاء اللہ دیکھیں چاچا ہماری بہت ہیلپ کرے ماشاء اللہ۔ یہ چاچا یہ جنازی نماز پڑھانے کا حال ہے، یہ جنازہ ہال ہے نا؟ اندر تک جنازی نماز پڑھانے کا حال۔ اچھا اچھا، یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے۔ مدرسے کا نام کیا ہے؟ اولیاء مدرسہ اولیاء تعلیم القرآن، زیر اہتمام مرکزی مجلس مسلم قبرستان کمیٹی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ یہ گیٹ ہے، یہ گیٹ جی جی جی، یہ گیٹ ہے، یہ ہے باب اولیاء مسجد۔ چاچا یہ پیچھے کارخانہ ہے؟ پاور لوم، پاور لوم، پاور لوم یہاں آواز سے، ارے ہمارے مالیگاؤں شہر میں تو یہی تو ہے، اسی کی آواز کی گونج میں تو پڑے ہوئے، اسی لیے یہ آواز جیسے ہی کانوں پر آئی تو میں آپ کی طرف مخاطب ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ انصاری بھی یہ ہے نا، یہاں پورا انصاری بھی پاور لوم کے پورا انصار نگر جو ہے نا سب پورا وہی ہے۔ اچھا اچھا مالیگاؤں کا مسجد تو بہت خاصی، یہاں سے مالیگاؤں والے بہت مسجد۔ السلام علیکم۔ 14.5 ایکڑ کا پٹا ہے، یہ کتنا؟ 14.5 ایکڑ ہے یہ قبرستان۔ ماشاء اللہ پورا۔ اچھا یہ جو بابا بھی آپ نے بتایا تھا کہ تمام مسلک کے لوگوں کو یہاں پر دفن کیا جاتا ہے، ہاں، تو ایریا ڈیوائڈ یعنی کہ الگ الگ نہیں، یعنی کسی بھی بھی جگہ پر کسی کو بھی دفن کیا جا ہاں، سکتا ہے۔ اچھا اچھا، ادھر جیسے یہ سیاہ برادری کی میت ہے، یہ مزار سب سیاہ برادری کی ہے۔ اچھا دیکھیں یہ یہیں پر، یہ یہاں پر کوئی بھی طرح کا ڈیوائڈیشن نہیں ہے، یعنی کہ جہاں پر درگاہ کا یہ قبرستان کمیٹی والے جگہ دے دیتے ہیں وہیں پر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ چچا بتا رہے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات کی اہل تشیعوں کی یہ قبریں ہیں، دیکھیں یہ اس طرف بھی میمن جماعت کھانے کی میمن، ہاں ہاں ہاں، کچھی کھوجا شیعہ اہل تشیع اور تمام مقتدہ فکر کے لوگ۔ دراصل اس طرح سے ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا تھا کہ اہل تشیع کو بھی اسی قبرستان میں لاتے ہوں گے، یہ میں ابھی تک پہلی جگہ دیکھ رہا ہوں، اور بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ ایسے چلو، ایسے گھوم کے آ جانا اولیاء مسجد۔ چلیں آپ دکھا دیں، یہ پورا گھما دو، یہ پورا انصار نگر کا علاقہ پیچھے کا، پاور لوم چلتا ہے پیچھے میں قبرستان۔ قبرستان سے لگ کر پاور لوم ہے۔ چچا آپ کا نام؟ میرا عنایت اللہ انصاری، میں یہاں سے بچپنے سے کام کرتا ہوں، ماشاء میرے اللہ، 27-28 سال ہو گیا۔ اوہ یہ مولانا ناطق کی قبر ہے، ہندوستان کے مشہور شاعر مولانا ناطق۔ مولانا سید ابو الحسن
नातिक जिलानी मरहूम, ये इनका तखल्लुस था दोस्तों। ये जो नातिक दिया हुआ है हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नातिक जिलानी मरहूम। ये शायर है बहुत बड़े, लश्करी बाग के रहने वाले। वहाँ एक जगह है अंदर में, वहाँ 35 साल के बाद में खोदा गया था, जैसे कि वैसी थे वो। हाँ, वो वहाँ पर क्या नाम है उनका? उनका नाम तो इमाम थे मस्जिद, क्या बोलते, लोधीपुरा, वहाँ की लोभीपुरा। 35 साल के बाद कब्र खोदी गई तो उनका जिस्म सलामत था। सलामत। सुभान अल्लाह, मुफ्ती कदीर साहब थे, ये अपने रशीद साहब जामिया रबिया इस्लामिया नागपुर के। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अपने देखें, मिले हैं खाक से लेकिन क्या नाम है दहन इनके मैला उस्ताद, नहीं होता। जी जी, मौलाना मुनीर असफ के उस्ताद। वो थे हाँ, वो जिंदा वो थे, आपने फिर देखे जिनकी कब्र। नहीं, जिनकी कब्र नहीं खोई, वो इमाम थे मस्जिद अच्छा के। अच्छा, मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब के जो उस्ताद थे उनकी उस्ताद, कब्र कहाँ है? उनकी कब्र जो मस्जिद में है। अच्छा, उनका नाम क्या था? और वो मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब। मुफ्ती अब्दुल जबकि रशीद नागपुर साहब। का अपने जब तक ऐलान नहीं होता वहाँ से कोई त्यौहार नहीं करते हैं। यानी कि चांद की चांद की शहादत शहादत। वगैरह। हाँ, ये सैयद बाबा की दरगाह है, बहुत सैयद पुरानी। बाबा। हाँ, इनके 7 मीनार है, उसमें होती नहीं थी, सब ये टूट जाती थी, आजू बाजू दीवारें सब टूट जाती थी। अच्छा अच्छा, देखिए आवाज़ आ रही है मशीन की सब। हाँ हाँ, मशीन की आवाज़ से हम बिल्कुल वाकिफ़ है, इसलिए कि शहर मालेगांव में तो यही है ना, वो आवाज़ कहीं भी सुनेंगे समझ में आ जाएगा कि लूम की आवाज़ है। ये किनकी कब्र है? ये सैयद बा हज़रत यहाँ बाबा पर सैयद शाह। 21-20 रमज़ान को उर्स होता है। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, खूबसूरत कब्रस्तान की मस्जिद है। ये पट्टे में पूरा कोरोना वाले को दफनाएगा। इस कोरोना में तरफ? जितनी मैयत आई थी ना, अच्छा पूरा अच्छा, इलाका कोरोना वाला, वहाँ बोट लगा हुआ था कोरोना का। तो इनको पूरा अलग दफन किया गया था हाँ, सबको कोविड वालों को। कोविड वाले को अलग किया। अच्छा अच्छा, एक चेन 4 गेट है, गेट ये है, गेट को साइड में एक बड़ा गेट है, वो एक पीछे गेट है। 4 गेट है कब्रस्तान में आने के लिए। मेन गेट वही जहाँ से हम लोग इंटर हुए थे। मेन गेट वही। ये पूरी आबादी अपने वालों की है, ये वैसे जाती है पूरी। जी जी जी, यहाँ आप रात में भी आऊँगे ना, इनको उजाला मिलेगा पूरे इसमें। कपड़ा पड़ा है ना। हाँ, लाइट चालू होती है। पूरे लाइट चालू रहते हैं पूरे। यहाँ का कोई भी कोने में आदमी चलेगा। रात में लोग आते हैं। मैयत आती है ना, रात में फातिहा पढ़ने जाती है। हाँ, तो मैयत के अलावा लोग जियारत के लिए, हाँ, फातिहा के आते लिए आते होंगे ना। 10 के बाद गेट बंद कर देते हैं। 10 के बाद नहीं आने देते। और 11 अगर बजे मैयत अंदर आने एंट्री वाली हो खत्म। तो हमारे यहाँ 7 बजे जो आर्डर आ जाएगा, रात के 12-1 बजे तक मैयत लेंगे, ऑर्डर है। और उसके बाद में हम्म, फिर सुबह बुलाएंगे। 7 के पहले बाद का आएंगे और सुबह बुलाएंगे। ठीक। यहाँ यानी- पे अस्पताल, मेडिकल। हाँ, 7 से पहले ला के तदफीन कर दो, नहीं तो फिर दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद से, है ना। 7 के पहले वाले रात के 11-12 बजे तक लेते हैं। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे जितनी रात को अगर जो चाहते हैं ना। नहीं, हमारे यहाँ तो खत्म कर दी। यहाँ कानून बदल गए ना। अच्छा अच्छा, यहाँ खैर पे सब औलिया जगह कराम के इस तरफ औलिया कराम के मज़ारात हैं। माशाअल्लाह। आराम गाह पीर तरीक़त हज़रत पीर तरीक़त हज़रत शाह इशरत बदख्शानी क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आराम गाह मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह। ये बाबा यहाँ पर लिखा है तारीख़ नागपुर किताब, तो ये किताब इनकी ही तहरीर करदा किताब है। हाँ, माशाअल्लाह। देखिए, आपकी किताब का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तारीख़ नागपुर। इस किताब के मुसन्निफ़ रहे हैं आप, तो कुतबे पर आपकी किताब का नाम भी लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये मुसद्दा। इरशाद बाबा।
इनका सिराना बाजू में है लिखा हुआ तख्ती अंदर में। ये लिखा है। हज़रत बाबा सैयद वली दाद उर्फ मुर्शिद बाबा रहमतुल्लाह अलैह। वो है पागल था दीवाने था के मुरीद तंथला, वो है हाफिज करेला। ये अंदर है। आइए दोस्तों देखिए, अब हम लोग जिस मज़ार शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है। ये कंबल पर बाबा है, मतलब सारी कंबल पर बाबा है यहाँ। जी। हजरत कंबल पर बाबा की दरगाह है। ये मुफ्ती साहब जामिया इस्लामिया नागपुर। फ़क़ी आज़म हिंद मोहम्मद अब्दुल रशीद खान साहब किबला, ये मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब के उस्ताद है। उस्ताद है माशाल्लाह। अब देखिए, अब इनकी शान में क्या कहा जाए। आप मुफ्ती साहब किबला जब इनके शागिर्द इस पाए के थे तो सोच लें उस्ताद की शान क्या होगी, इनकी अजमत क्या होगी। 9 ज़िलहज को उनका पर्दा किया है आपको। हाँ 9 ज़िलहज को पर्दा किए और 10 ज़िलहज को दफनाया गया है। पर्दा खूबसूरत खाक किया गया है। क्या किया गया था? यानी यहाँ पर दफनाया गया था। सुपुर्द खाक बहा किया गया। यानी ईद के मक्के बकरीद के दिन 10 तारीख को। अच्छा 10 ज़िलहिज्जा। हाँ, यानी कि 100-150 मैयत का अवरेज है यहाँ का। और यहाँ पर नागपुर शहर के जितने कब्रिस्तान है सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये। और इसके बाद में यहाँ पर नागपुर शहर में 10 कब्रिस्तान और चालू है, छोटे बड़े। और यहाँ पर नागपुर के जितने फुटपाथ की मैयत होती है गरीब की, जिसका कोई करने वाला नहीं, सबकी मौत मिट्टी का स्टार कमेटी करती है। दोस्तों जितना मुमकिन हुआ आपको नागपुर के मुस्लिम कब्रिस्तान की ज़ियारत करवाई, और अब हम चलते हैं मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर, और उनकी मज़ार की ज़ियारत आप लोगों को करवाते हैं। ये देखिए इस तरफ गुलाम अहमद मुफ्ती, गुलाम अहमद टोपी गुलाम अहमद।